नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNARKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल सबके लिए मंगलमय हो। वैसे भी मंगल का साल है ज्योतिष के हिसाब से, और भारत बहुत तरक्की करे, हम सब लोग खुशहाल रहें, सबको इंसाफ मिले और कोई भी द्वंद्व, कोई भी तनाव जो है वो सब चीजें खत्म हो जाएं। बिल्कुल, that is what exactly Prime Minister Modi has wished everybody. It will be a year full of opportunities for everybody and success for everybody, and everybody actually works their way up. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर 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 महादेव। हर महादेव। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, in French, bonsoir, Pradeep ji. Habariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Pradeep ji, so great achievement for the Modi government. Fantastic. Zabardast Tawahur Rana. अब आएंगे, he'll be forced to come to India and stand trial for 26/11. Yes, exactly. One of the major planners of the 26/11 terrorist attack in Mumbai. मतलब इतने सालों के बाद आप देखिए, 2008 के बाद आप कितने 14 साल हो गए सर। Yes, yes. 16 बरस हो गए, 16 years. I mean, we've been at it for the last 16 years. किसी भी तरीके से इन जनाब को वापस लाया जाए ताकि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। 26/11 के आतंकवादी हमले को लेकर के ये तबाहुर राना साहब जो हैं, ये जनाब पाकिस्तानी हैं, लश्कर तोयबा के हैं और ये प्लानर थे 26/11 के। प्रदीप जी, ग्रेट अचीवमेंट। It's a fantastic achievement. The very fact that to know that how David Headley and Tawahur Rana planned, and David Headley coming into this country, Yes. and it was so easily moving around all the places, and it was an absolute intelligence failure that we could not nab these guys, and the way they collected information, went back, disseminated the information and planned the attacks, and sea route लेके जिस प्रकार से आए यहाँ पर, and then जो तबाही उन्होंने मचाया, when you go back in flashback and try to understand those things, it will be a great achievement, and it only reflects upon the quality of leadership that we have right now, which has forced the Americans to think about extradition of one of the terror plotters who are there in US jails. You know, out Pradeep here ji, to India. what impresses me the most is that we haven't given up. The Modi government didn't give up. You know, even after so long, we continued with pressing for the extradition of Tawahur Rana. Even though it was refused, even though the permission for David Headley was refused, I hope we get to interrogate and to let David Headley also pay for his crimes right over here. But anybody else would have given up. कभी जाने दो, क्या कर सकते हैं? He's in American custody, but these guys didn't give up. And I think this is a great New Year gift for the people of Mumbai, that this man who actually planned out all the massacres that took place that day, I don't think we should ever let go. It's a great news when we heard it in early mornings. So, मालूम पड़ा कि really it's a great achievement. But I don't think we have done such things, anything of this magnitude. Ever in the past. आज तक ever कभी in नहीं the past. To get a person who's not a resident of India, not a citizen of India, who has created havoc in India, and to get him back from US is something of a great achievement. It's fantastic, absolutely It's fantastic. a So, feather in the hat of. so we must Prime Minister congratulate. We absolutely have to congratulate the Modi government. बिल्कुल बिल्कुल. There are no two ways about it. You can't. I mean, कुछ और यहाँ पे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधी बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट माशाल्लाह, मतलब जबरदस्त कहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आज आदरणीय सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस साहब गढ़चिरौली में थे। Exactly. वहाँ पे काफी नक्सलवादियों ने, नक्सलवादी लीडर्स ने आत्मसमर्पण किया है। And hopefully now they'll be part of the mainstream. I hope. I mean, one thing he wanted was, he says, I don't want to be Palak Mantri of any place, but if at all the three of them agree,
I would like to be a Palak Mantri of Gadchiroli. That was what CM Devendra Fadnavis said. Yes. And he has got plans for Gadchiroli, transforming a tribal infested area into a developed kind of place where trade, commerce and all kinds of these things flourish, where infrastructure build-up is there. He talked about infrastructural projects. He said, this is the last district, but for me, I'm going to plan it as the first district where Maharashtra is concerned. Well, it all depends upon where you're starting the counting from. Yes, sir. अगर आप बिल्कुल बॉर्डर से काउंट स्टार्ट करें Yes, तो गढ़चिरौली नंबर 1 अपने आप बन जाता है. Correct. तो वहां से लेकर के आप यहाँ तक आए. So, and this is the first time, really and truly speaking, that anybody's actually looked at Gadchiroli as a place for development, not as a problematic place. Exactly. सबसे बड़ी बात ये. मतलब, and I think Mr. Fadnavis needs to be congratulated for that, for the very fact that, hey, listen, I'm going to transform Gadchiroli. मुझे अभी तक याद है प्रदीप जी, एक हमारे उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो जनाब क्या थे, वो गृह मंत्री भी थे. प्रदीप जी, डिविजनल हेडक्वार्टर से जाने से मना कर दिया था उन्होंने. Exactly. हम लोग अंदर गए, हम लोग जंगल के अंदर गए, पूरी टीम को लेकर के अंदर गए, जब वहां पे बहुत बड़ी घटना हुई थी, वहां तक गए और वहां से फिर बाहर नहीं निकले और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले गए. Yes. ये देखिए, I mean, this is amazing, really and truly amazing. I must absolutely, Pradeep ji, we must congratulate Mr. Fadnavis. Bilkul, sir. Brilliant. And talk about development of Gadchiroli, infrastructure, roads, connectivity from Gadchiroli to और पहले independence के बाद पहले बार वहाँ पर ST local ST बस चालू हो गया. Now that's a great achievement by itself. यानी अब तक आपके transport network Gadchiroli में नहीं था, and now he started that Gadchiroli transport. Now he's talked about connecting Gadchiroli to border states. जो border states है, उनके through Gadchiroli वहाँ से roadways connecting in the adjoining neighboring states. Now he has plans for Gadchiroli, and if you transform the most tribal Naxal infested area, I was already caught that's a huge achievement. Part of the red corridor, that's a and huge transforming them into a development agenda. Then you're talking about great things for Maharashtra. So Maharashtra is good, definitely good. So two great achievements today: A, Tawahur Rana extradition, and two, Mr. Fadnavis accepting the surrender of these Naxal leaders in Gadchiroli. Fantastic. Now I think all three of our guests are connected. Vinayak Ambekar साहब, भारतीय जनता पार्टी के पुणे से. Vinayak Ambekar साहब, नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. Happy New Year, sir. Happy New Year. Same to you, sir. Dr. Dhone, Dr. Dhone, Sudhir Dhone of the Congress from Akola. Namaskar, sir. How are you? And Dr. Surendra Malhotra from Sharad Pawar NCP from Mumbai. Thank you so much, ma'am, for joining us. Very, very happy New Year to all of you. आप सब लोगों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं. अब विनायक अंबेकर साहब, आपसे शुरू करता हूं. दो बहुत जबरदस्त खबरें आई आज. एक तो तवाहुर राना, जिसकी एक्स्ट्रेडिशन के लिए भारत सरकार 2009 से कोशिश कर रही थी. अब जाकर अमेरिकी कोर्ट ने परमिशन दे दी है, रूलिंग दे दी है that he can be extradited to India, which I think is absolutely wonderful. It is brilliant. Irrespective of whichever side of the political spectrum you may be, this is a great achievement for the Modi government. They did not give up. That's exactly what Pradeep ji and I were talking about. Irrespective of the time, जितना भी time लगे, कुछ भी लगे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. Our legal team kept working in America, and we got the order we wanted. Hopefully, David Headley will follow. लेकिन David Headley की सिचुएशन जरा अलग है. ये कहा जाता ही वॉज पॉसिबली ए CIA एसेट, जिसकी वजह से शायद उनकी एक्सट्रेडिशन में डिफिकल्टी होगी. लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वील गिव अप. दिस क्लियरली शोज. I would say congratulations to Mr. Ajit Doval, congratulations to the entire team set up by the Modi government. Number 2, गढ़चिरौली में नक्सलवादी लीडर्स ने आज, काफी नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है. और देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि अगर मैप को देखें, इस तरफ से अगर हम काउंटिंग करते हैं, बाएं हाथ की तरफ से अगर हम काउंटिंग करते हैं, तो गढ़चिरौली आखिर में आता है. जहां तक मैं समझता हूं, आज के बाद गढ़चिरौली विल बी द सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होगा. और अगर मेरे बाकी लोग जो हैं वो एग्री करते हैं, सो वैसे मैं पालक मंत्री बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का मैं पालक मंत्री बनूंगा तो वो गढ़चिरौली का बनूंगा, विच इज ब्रिलियंट.
Fantastic. So two very very good achievements, great achievements on New Year's Day. विनायक अंबिकर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बोलिए सर। ये जो भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, देश की वेलबींग के प्रति जो कमिटमेंट है, उसका ये प्रतीक है, ऐसा मैं कहूँगा। और वो हम हमेशा सिद्ध करते आए हैं, भले वो नरेंद्र जी मोदी रहो या देवेंद्र जी फडणवीस रहो। भारतीय जनता पार्टी का हर कोई व्यक्ति अपनी जो कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट, मी लास्ट, तो ये जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट को पूरा अमल में लाता है। इसका ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। You know, I wanted to ask you, आज उद्धव ठाकरे जी, the mouthpiece सामना, he talked about last year being the year of massacre of democracy. डेमोक्रेसी का मैसाकर जिस प्रकार से लास्ट वर्ष में हुआ, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि पहले कभी हुआ नहीं था। He talked about मराठा रिजर्वेशंस, और मराठा रिजर्वेशन कंट्रोल करने के लिए फिर सरकार ने किस प्रकार से बाकी जातियों को उकसाया, प्रोवोक कर दिया, परभणी से बात किया, भीड़ का बात किया। So how do you see Uddhav Thackeray ji's reaction? उद्धव ठाकरे जी एक वंशवादी पार्टी के नेता है, जिनकी डेमोक्रेसी उनके वंश तक ही सीमित है। असल में जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो डेमोक्रेसी हमको सिखाई है, उस डेमोक्रेसी की जो ऊंचाई है, वो उद्धव ठाकरे जी के क्षमता के बाहर है, समझने की क्षमता के बाहर है। तो उन्होंने ऐसा बात करना, कोई किसी के ऊपर टीका करना, ये स्वाभाविक है, उनका वो धर्म है। और उनके पास टीका करने के सिवा कुछ नहीं है करके महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। वो अभी तक उनको समझ में नहीं आता रहेगा, तो उसका वो भुगतेंगे, हम क्या करेंगे उसको। उनको शुभेच्छा जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहां तक कि अभी महाराष्ट्र का प्रश्न है, चलिए ये दो जो बात करी है, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने जो कुछ भी कहा, आफ्टर ऑल ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेज यू, इवन दो इन माय ओपिनियन ही शुड। All opposition parties should also praise the government where praise is due and criticize the government where it is due. But then that's my opinion. Who listens to me anyway? I still remember Atal Bihari Vajpayee ji praising Mrs. Gandhi after 1971. I hope all that comes back. I really and truly wish all that. If I had a New Year wish, I would say सरकार ने जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ पे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मेरी ये न्यू ईयर की मेरी अंदर की बड़ी अच्छा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं सर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बीड का जो मैटर था, वो जो क्या नाम है उनका, वाल्मीकि कराड़ जो हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जितेंद्र अवार्ड साहब कहते हैं ये मैच फिक्सिंग है। दूसरा जो परभनी का मैटर है वो अभी भी चल रहा है, उसमें कब तक, बाय व्हेन विल वी हैव अ फिक्स ऑन इट सर, आपके मुताबिक? सर उसके लिए जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और वो काम करेगी। अभी ऐसा है कि कोई भी कमेटी, एसआईटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाता है तो उसको समय तो लगता है, क्योंकि वो उनकी मोडेलिटी के हिसाब से, मेथड के हिसाब से चलेंगे आगे। तो उस हिसाब से वो काम शुरू हो गया है। आज आपने सुना रहेगा तो वाल्मीकि कराड़ ने पूना में जिसके पास रेसिडेंस किया था, उन महिला को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया था। वाल्मीकि कराड़ के जितने एसोसिएट्स हैं उनको सबको इंक्वायरी के लिए बुलाया है। जो मेन आरोपी है उसके 2 भाइयों को भी बुलाया है। तो उन सब का इंक्वायरी होगा, पूरा जांच छानबीन होगी और उसके बाद में पूरा न्याय उनको दिया जाएगा। जबरदस्त, फैंटास्टिक। एंड I'll come back to you Vinayak Ambekar sahab, because we have lots to talk about, especially where the economy is concerned. We'll talk about it in just a minute, because I believe some new major steps are being planned to push the economy forward, to push the GDP, to accelerate the GDP, and also in terms of poverty alleviation program. We'll talk about that in just a minute. But since we have guests, Dr. Surena Malhotra. Dr. Surena Malhotra जी, आपके मुताबिक जो अभी बीड़ और परभनी में जो हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे अभी? क्योंकि वो वाल्मीकि कराड़ साहब ने तो सरेंडर कर दिया है, वो ये सरेंडर टू द पुलिस। और जहां तक के परभनी का प्रश्न है, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है, इट इज अ कस्टोडियल डेथ, but then there's a special investigation team which is actually investigating that. Though why is the NCP so agitated? ये बताएं जरा please. Basically, the custodial death, I mean, I don't really understand why it is taking such a long time. Okay, there must be, I mean, a custodial death, a death due to injuries, as I had told last time also. I mean, it is a very the straightforward case and it can be easily proved.
Now, who gave him injuries and all, that is something to be proved. But otherwise, I don't think why it is taking such a long time. Whom they want to save? I mean, this is जातिवादी बात है, तो उसमें किसको सेव करना चाह रहे हैं? It is a simple thing. It is a person dies of shock due to multiple injuries, grievous injuries. So that there is no two ways about it. एंड सेकेंडली वाल्मीकि कराड़ ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ एंड ऑल, तो वो ठीक है, वह आगे देखते हैं कि वो मतलब बच के बाहर आते हैं कि उनके ऊपर प्रूव होती है केस, ये सब बिकॉज जब तक उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती, एनसीपी और हमारी जो मित्र पक्ष है, हम लोग सब शांत नहीं बैठेंगे, बिकॉज इतने ग्रूसम मर्डर है दोनों केस में, इतने ग्रूसम मर्डर है कि जनता लोग चाहते हैं कि इसका कुछ हल हो। डॉक्टर मल्होत्रा आगे जाकर उत्तम राव जानकर शरद पवार जी के बहुत करीब, उन्होंने कहा, उनके एनालिसिस जो निकाला, उन्होंने कहा कि एक्चुअली बारामती में अजित पवार जी 20,000 वोट से हारा हुआ है। उन्होंने कहा कि अजित पवार जी को 12 सीट, एकनाथ शिंदे जी को 18 सीट, बीजेपी को 77 सीट, मिलकर 107 और 110 तक एक्चुअल आंकड़ा है। और इस आंकड़े के लिए पवार साहब के साथ बैठ के वो आगे का मरकटवाड़ी इंक्लूडेड छोलापुर का वो एक कैंपेन चलने वाला है। तो यू आर नॉट गिवन अप डॉक्टर मल्होत्रा, यू आर फाइटिंग। So they are fighting. They will be lodging some cases. जो भी legal मतलब उनके पास जो proofs आए हैं, वो definitely they will take action. It is not that they are going to give up on this issue. Definitely, it was a whole shocking thing for everybody. But as Pawar sir very correctly said, that they will look for proper proofs and then file the cases. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर मल्होत्रा? सुप्रिया सुले जी वाज वेरी वेरी ओपन, उन्होंने कहा इसी ईवीएम की वजह से मैं 4 बार जीत के आई हूँ। तो यू आर सेंडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग, एक तरफ आप ईवीएम को सपोर्ट भी कर रहे हो, दूसरे आप मरकटवाड़ी के बात भी कर रहे हो कि यहाँ से जयप्रकाश नारायण जैसा आंदोलन चलेगा। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या असलियत क्या है। पवार साहब बेसिकली अल्टीमेटली जो भी एक्शन लेंगे तो वो जो भी प्रूफ के आधार पर लेंगे। डेफिनेटली लीगल टीम इज देयर, तो लीगल टीम विल लुक इनटू इट डेफिनेटली, एंड काफी सारे उम्मीदवार भी है, तो सब लोग अपना अपना भी चाह रहे हैं कि उसमें इंक्वायरी हो जाए, तो जो भी प्रूफ्स होंगे, सही बात होगी, उसके लिए ऊपर एक्शन लेंगे। ऐसे ही नहीं कि कुछ हवा में बात करेंगे, पवार साहब तो वैसे करते ही नहीं है कभी। So that definitely legal team hai and they are looking into it. However, the fact remains that perhaps if Supriya Sule ji could have restrained herself a little bit, it would have helped you. However, the fact remains कि उन्होंने जो कुछ बोला है उसकी वजह से क्या हो गया है कि थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं I'll ask डॉक्टर ढोने, डॉक्टर साहब, oh God, we've got 2 doctors with us. Yes. So, all right. So, सर ये बताएं डॉक्टर ढोने साहब कि सुप्रिया सुले जी कह रही हैं कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 4 बार जीत के आई हूँ ईवीएम की वजह से, और हम बाकी सब लोग जो हैं वो ईवीएम चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम की वजह से आप लोग हारे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक्चुअली वोट परसेंटेज का अगर आप एनालिसिस करें तो साफ दिखता है कि आप क्यों हारे हैं। एनीवे, यू मे नॉट एग्री विद मी, क्योंकि आफ्टर ऑल एज प्रदीप जी हैज सेड ऑन सो मेनी ओकेजंस, लोकसभा में जो आप 31 सीट जीते थे 30+1, वो सिर्फ 1% की वजह से जीते थे। 1% से भी कम था, 0.85% था आपका जो वोट शेयर था, एनडीए से 0.85% ज्यादा था। इस बार राज ठाकरे पार्टी हैज टेकन 1.8%, ऑलमोस्ट 2% इस तरफ हो गया, तो आपका हारना तो लाजमी था ही। लेकिन फिर भी आप ये बताएं सर, डॉक्टर ढोने साहब, कि सुप्रिया सुले जी जब कह रही हैं कि इसी ईवीएम की वजह से मैं जीती हूं, सो वेयर डज दैट लीव इंडिया अलायंस यूनिटी? और ऊपर से दूसरी तरफ, उसके ऊपर भी मैं चाहूंगा आप जरा कमेंट करें, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं हमें तो आप सोचना पड़ेगा कि हम इंडिया अलायंस में हैं या नहीं है। ये जिस तरीके से अजय माकन साहब और बाकी सब लोग हमें अटैक कर रहे हैं, क्या मतलब क्या हुआ ये? अब आप बोले सर, डॉक्टर ढोने। नहीं, ऐसा है, सुप्रिया सुले जी ने जो बोला कि मैं 4 बार जीती हूँ, ये तो बात सही है, लेकिन देखिए इस बार क्यों पहली बार ईवीएम पे लोगों को शक हो रहा है? क्यों? इसीलिए कि महाराष्ट्र में 288 में से 95 जगह पे वो मैच नहीं हुआ, बैलेट जो वोटिंग हुआ वो और मशीन में जो आंकड़े दिखाए वो मैच नहीं हुआ, इसलिए शक तैयार हो गया। और अभी चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम ये कुछ जानकारी नहीं देंगे, और जानकारी देने का समय भी उन्होंने बोले 45 दिनों के बाद। मैंने वो अगर किसी को इलेक्शन पिटीशन करना है
तो उसके लिए टाइम रहता है। वो टाइम खत्म होने के बाद वो जानकारी देंगे, तो यानी आप कोर्ट में भी जाएंगे नहीं और हमारी मनमानी चालू रहेंगी। तो उन्होंने इस बार गैजेट में जो चेंज किए कि भाई हम जो फॉर्म सब कुछ 17 नंबर का फॉर्म जहाँ पे मालूम रहता है कौन से बूथ पे कितना ये हुआ है, तो वो नहीं देंगे जानकारी। ये ऐसा अगर करेंगे तो लोगों को शक होना तो स्वाभाविक है, एक बात। दूसरी बात, ये 95 जगह पे हुआ है कुछ, मैं ये बोलूंगा कि एक भी आंकड़ा जहाँ पे मशीन में जो है वो वोटिंग और जो लोगों ने दिया था कि भाई हमारी वोटिंग इतनी हुई, तो वोटिंग होने के बाद में जो आंकड़ा आता है कि इतने लोगों ने वोटिंग किया है और मशीन से निकला हुआ आंकड़ा, उसमें एक दो भी अगर कुछ फर्क पड़ता है तो इसका मतलब कुछ तो भी गलती हुई है। तो इसीलिए लोगों को शक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं इसमें। दोरे साहब, आज 207 years of भीमा कोरेगांव शौर्य दिन is being celebrated, मगर at the same time आज पिनराई विजयन ने रिप्लाई दिया जो नीतीश राणे का कि केरल में जिस प्रकार से जो आरोप लगा दिया अबाउट टेररिज्म, और तो उन्होंने कहा कि पिनराई विजयन ने कहा कि सनातन धर्म के माध्यम, सनातनी अपने इस सनातन धर्म के माध्यम से ब्राह्मणिज्म को इम्पोज करना चाहता है। ब्राह्मणिज्म, आप आज फिर बीजेपी ने आवाज उठाया कि जिस प्रकार से कांग्रेस एंड अलायंस, इंडिया अलायंस किस प्रकार सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, लगातार एक के बाद उदयनिधि के बाद अब विजयन भी करने लगे। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? यू ट्राइंग टू इम्पोज ब्राह्मणिज्म थ्रू सनातन धर्म। नहीं, ऐसा है कि ये जो नीतीश राणे हैं, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ लिए थे कि मैं सबको साथ में लेके चलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी शपथ है कि उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। और आज यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनको तो सही में इन्होंने शपथ का उल्लंघन किया, ऐसा ये सिद्ध हो जाता है, इनको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता नहीं है। इनके पास कहाँ नैतिकता है? अभी देखिए ये जो बीड़ का है, बीड़ में जो हुआ, वो बीड़ के जो संतोष देशमुख है जी, ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख है। तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख की हत्या हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है या उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ये लोग कहाँ छुप गए? कहाँ है ये लोग कि एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख की हत्या हुई, बुरी तरह से उसको मारा है, तो फिर भी ये लोग चुप है, क्योंकि इनको सत्ता जरूरी है। इनको ना कार्यकर्ता की फिक्र है, ना किसी आम आदमी की फिक्र है। जब इनको उनके बूथ प्रमुख की चिंता नहीं है तो ये आम आदमी की क्या फिक्र करेंगे? तो इनके पास नैतिकता भी नहीं है। देखिए ये जो वाल्मीकि कराड़ है, जो इसका सूत्रधार है, वाल्मीकि कराड़ जो है, वाल्मीकि कराड़ के और इसके धनंजय मुंडे के बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने एक ही 7/12 पे उनके दोनों के नाम है, एक साथ उन्होंने खेती ली हुई है, बहुत सारे प्रॉपर्टी में वो दोनों बराबरी के हिस्सेदार है, दोनों मिलके लिए है, यानी वो पार्टनर है उनका। एक बात तो धनंजय मुंडे से भी उनके बहुत खास संबंध है। और पंकजा मुंडे को तो वो बचपन में पंकजा मुंडे और उनकी जो बहन है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो दोनों को स्कूल में छोड़ने का काम करता था। स्कूल में छोड़ता था, वापस लाता था, ये काम वो करता था। वो गोपीनाथ मुंडे का कार्यकर्ता था। और अभी 4 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे क्या बोले पंकजा मुंडे का एक स्टेटमेंट है कि एक गोंडस बाळ यानी एकदम अच्छा सा, गोंडस यानी मराठी शब्द है ये, कि भाई अच्छा खूबसूरत अच्छा दिखने वाला एक अच्छा, ये देखिए जिसको प्यार से हम लाड से बोलेंगे ऐसा एक है, बच्चा है, बोले आया हुआ है यहाँ पे, कौन? गणेश हाके। तो गणेश हाके जो है, इसने ओबीसी की मूवमेंट चलाई, एंटी मराठा मूवमेंट चलाई। और उन्होंने पंकजा मुंडे ने बोला कि इनको किसने लाया मेरे स्टेज पे? वाल्मीकि कराड़ ने लाया। मेरे पास वो वीडियो क्लिप है पंकजा मुंडे की। तो इसका मतलब पंकजा मुंडे के और इसके भी संबंध है वाल्मीकि कराड़ के, और वो तो बचपन से जानती है। तो पंकजा मुंडे मिनिस्टर है और धनंजय मुंडे मिनिस्टर है, और जो हत्या करने वाला है वो उनका पार्टनर है। तो इतना होने के बाद में भी उनको मंत्री पद से नहीं निकाल रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक मुख्यमंत्री ने अपनी बच्ची के लिए बोला, फोन किया कि भाई इसके थोड़े से मार्क बढ़ा दो, तो उसके मार्क बढ़ाए तो कांग्रेस ने उसका इस्तीफा लिया, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का इस्तीफा लिया कांग्रेस ने। एक दूसरी बात, जो विलासराव देशमुख थे
वो विलासराव देशमुख साहब, वो उनका जो लड़का है वो इसके साथ गया, विलासराव देशमुख का लड़का अमित रितेश देशमुख, राम गोपाल वर्मा, वो गए वो होटल देखने के लिए जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया था। तो जी। अखबारों ने दे दिया, आपके जैसे लोगों ने उठाया न्यू, ये देखो लोग मर रहे हैं और इनको पिक्चर निकालने की सूझी है। सोनिया गांधी ने बोला कि आप इस्तीफा दो, ये गलत है आपका ये। तो ये देखिए, ये इसको बोलते हैं नैतिकता। और इसके बाद शिवराज पाटिल जो है, ये गृह मंत्री थे भारत सरकार के, दिल्ली में बॉम्बस्फोट हुए, उस देखने के लिए वो गए 4 जगह पे, उन्होंने अलग अलग ड्रेस पहन के गए 4 जगह पे। अब ये तो कोई बहुत बड़ा गुनाह तो हो ही नहीं सकता, वो 4 ड्रेस, लेकिन आप जैसे लोगों ने, अखबारों ने दे दिया कि देखो लोग मरे और इनको ड्रेस पर बदलने की पड़ी है। तो ये नैतिकता के आधार पे सोनिया गांधी ने कहा कि आपका गलत है, लोग मर रहे हैं और आप ड्रेस बदल रहे हैं, आप इस्तीफा दे दो। तो इसको बोलते हैं इस्तीफा, जो कांग्रेस के पास है इस नैतिकता। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिकता नहीं है। राइट, सो लेट्स गो अक्रॉस इनका टू एक विनय कार्यकर्ता साहब। इनका एक कार्यकर्ता इनके कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसके लिए हम रास्ते पे आए जी। हैं। और देखिए इसमें ना जातिवाद है, ना इसमें कोई पार्टी का सर, राजकारण है। इसके देखिए पहले कि मैं उधर विनायक अंबेडकर सुनिए, साहब के पास जाऊं, सर आपने आपने बता दिया, वो आपने बता दिया संतोष देशमुख की जो हत्या हुई है उसके ऊपर आप बोल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, और सबको सुनाई भी दे गया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं कि क्या आज आपको मोदी सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए? तवाहुर राणा चीज के लिए? जैसे प्लानर, 2611 का जो प्लानर है, फाइनली भारत को विजय मिली है अमेरिकन कोर्ट में। अमेरिकन कोर्ट ने ये रूल किया, ही कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है सर? नहीं, ऐसा है कि ये जितने भी हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, सर ये पुलवामा हमले नहीं, हुए, सबके बाद 2611 मुंबई का। नहीं ठीक है, मुझे मालूम है 26/11 की जो बात कर रहे हैं आप। मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो प्रोसीजर रहती है, ये तो सरकार कोई भी रहे तो ये प्रोसीजर करती है। लेकिन बहुत सारी बातें अब सर कांग्रेचुलेशन बड़ा क्या दिल रखिए करना ना, सरकार सर बड़ा दिल नहीं रखिए, क्या कर रहे हैं सर? दिल बड़ा रखिए, जहां पे नहीं, तारीफ दिल करनी बड़ा- होती है तारीफ करिए ना सर। इट्स अ ह्यूज नहीं अचीवमेंट सर, ऐसा मत बोलिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो, इनके तो दावे तो बहुत सारे रहते हैं कि भाई हम इन दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। लेकिन ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई वो होती रहती है इसमें। जैसा वो ठीक है, एक दहशतवादी पकड़ा गया, हम उसका स्वागत करते हैं कि अच्छा हुआ। लेकिन बाकी आज जनता के क्या हाल है इस देश में, आप जी देखिए। राइट, वी विल कम बैक टू दैट। और- लेट मी गो अक्रॉस टू विनायक अंबेडकर साहब, जो आपने 2 पॉइंट्स अभी रेज किए, बहुत सारे। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी ने भी और आपने भी, उसमें मेजर पॉइंट ये था विनायक अंबेडकर साहब, सर नीतीश राणे साहब को देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले भी, जो मेरे संज्ञान में बात है, कि भाई उनको बोला था कि जरा रेस्ट्रेंट शो करो। अभी उनको क्या जरूरत पड़ी? केरला इज अ पार्ट ऑफ इंडिया सर, मिनी पाकिस्तान बुलाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाई इज ही ट्राइंग टू एम्बैरस द गवर्नमेंट हियर? विनायक अंबेडकर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, अब आप बोलें सर प्लीज। उनका वैयक्तिक मत है, ये कोई पार्टी का मत नहीं है। जी। वैयक्तिक लेवल पे उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है उसके बारे में पार्टी उनको समझ दे देगी। ये उनका स्टेटमेंट सही है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, गलत स्टेटमेंट है, उसके बारे में पार्टी उनसे बात करेंगी। जी। नंबर 1। दूसरा, मैडम जी ने पूछा था कि इतना समय क्यों लगता है। जी। अभी आप 2611 का बात कर रहे हैं, जी। उसके तपास के लिए, उसके आरोप पत्र दाखिल होने के लिए, उसके आरोपी पकड़े जाने के लिए कितना समय लगा था, जी। ये मैडम जी जरा चेक करें, इंटरनेट पे पूरा अवेलेबल है। कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई भी बड़ा गुनाह होता है, तो उसके एक प्रोसीजर रहती है और वो प्रोसीजर Totally फॉलो different करके and ही उसके बाद में आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा आरोप कोई भी गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, क्योंकि आगे चल के उस जो कल्प्रिट है उसको शिक्षा होना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो देवेंद्र फडणवीस ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है कि कड़ी से कड़ी सजा इनको होगी। अभी तीसरी बात है जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि बड़ी कांग्रेस की नैतिकता है, जिनका नाम उन्होंने लिया उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, सोनिया जी गांधी का, मगर उन्होंने लिया है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि 1998 से लेकर 2017 तक देश की जो सबसे बड़ी 100 साल के ऊपर की पार्टी है, उनमें सोनिया जी गांधी को कोई दूसरी व्यक्ति अध्यक्ष के लिए लायक नहीं मिली। यही उनकी नैतिकता है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, कितनी बड़ी नैतिकता है। और 2017 में उन्होंने जो अध्यक्ष पद छोड़ा वो अपने बेटे के लिए छोड़ा, और उस बेटे ने 2019 के इलेक्शन में जो कांग्रेस का
पराभव हुआ, उसके बाद में वो अध्यक्ष पद छोड़ा, उसके बाद में वापस वो खुद अध्यक्ष बनी, क्योंकि ये पद अपने घराने के बाहर किसी भी व्यक्ति को उनको देना नहीं चाहते थे वो, ये उनकी नैतिकता है। तो ये देश का आदर्श है, और कांग्रेस वालों ने इस देश को ऐसे ही आदर्श उनके जो 53 साल की नेहरू गांधी घराने की जो राज्य व्यवस्था थी उसमें दी है। तो अभी लिखा मैं अम्बेडकर इकोनॉमिक्स में आता हूँ सर, जी जी बोलिए कि सर। मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। जी माननीय मनमोहन सिंह जी की बड़ी तारीफ हो रही है, और मैंने भी खुद की है कि 1991 में उन्होंने इस देश को बचाया। क्यों, कहाँ कहाँ से बचाया? क्योंकि ये देश की पूरी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया था, और देश के पास जो फॉरेन करेंसी रहती है वो इतनी कम हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में भारत को कोई लोन देने को तैयार नहीं था। आईएमएफ ने बड़ी कंडीशंस डाली थी, और उसमें ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि भारत का उस समय में इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे बहुत बड़ा डिपेंडेंस था, जो 10 साल के मोदी सरकार ने बहुत कम किया है, मगर उस समय में बहुत था। 1991 में मेरे हिसाब से 85% के ऊपर था। उस समय में खाली 2 हफ्ते का डीजल क्रूड ऑयल आएगा, इतना ही पैसा हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बचा था, जो करंट अकाउंट बोलते हैं उसमें बचा था। जी तो ऐसी व्यवस्था देश की 1957 से 1991 तक किसने बनाई? तो उस समय में जो कांग्रेस की सरकारें थी, जो नेहरू गांधी घराने की सरकारें थी, उन्होंने बनाई। हमारे देश में एक पॉलिसी का नाम चलता है, नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म। यस ये नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म ने पूरी झूठी एक सरकारी सार्वजनिकीकरण की एक पॉलिसी अपनाई, जिसके वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था का पूरा सत्यानाश हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना जो है वो 1949 में अपने भारत के बाद 2 साल में स्वतंत्र हो गया, मगर 1978 में उसने, चाइना ने अपनी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड को ओपन कर दी। और फर्क क्या हो गया? 1978 से 1991 तक इंडिया में इनके नेहरू गांधी घराने का लाइसेंस राज चलते रहा, इंडस्ट्री का पूरा सत्यानाश हो गया। जितने भी सार्वजनिक उद्योग इन्होंने बनाए उसमें से 90% फेल हो गए। एचएमटी का उदाहरण लो, मैं ऐसी 100 उदाहरण दे सकता हूँ। और देश की ये अर्थव्यवस्था की ये घिनौनी हालत हो गई थी। तो इनके जो मनमोहन सिंह का हम कौतुक करना ही चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी ने इस देश को बचाया, देश का इकोनॉमी जो पूरा खुला किया वर्ल्ड के लिए, और फिर आज भारत की जो आर्थिक सुबत्ता है उसके वो पायोनियर थे दोनों भी। मगर इनकी जो नैतिकता है, वो नैतिकता क्या बोलती है? मनमोहन सिंह का ये जो स्मारक होना चाहिए वो इनको विशिष्ट जगह पे होना चाहिए था, मगर जिस नरसिंह राव ने इस देश को बचाया, उस नरसिंह राव के बॉडी को इन्होंने कांग्रेस के हेड ऑफिस में आने तक नहीं दिया। ये सोनिया जी ने 2 घंटा उनका बॉडी ये कांग्रेस के दिल्ली के हेडक्वार्टर के बाहर ऐसे एक सामान्य आदमी के तरह रुका के रखा, और बाद में भी उनको थोड़ी भी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि एक देश का अच्छा प्रधानमंत्री जो था, जिसने 5 साल अच्छा कारोबार किया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, उसके लिए दिल्ली में कुछ जगह दे। ये उनके दिल में जगह नहीं थी नरसिंह राव के लिए। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको नरसिंह राव के कोई पॉलिसी पसंद नहीं आए, या मनमोहन सिंह जैसा जो कलसूत्री बाहुली बोलते मराठी में हम, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली, वो नरसिंह राव ने होने से नकार दिया। तो ये नैतिकता के बड़े महाराष्ट्र के जग भर के उदाहरण है। ये कांग्रेस तो बड़ी नैतिकता वाली है, तो इसके बारे में मैं और क्या बोलूं। But you know, they are also accusing you, अम्बेडकर साहब, that आप भले मनमोहन सिंह के तारीफ करें मगर अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट वो ठीक नहीं था, फैमिली मेंबर्स को जगह नहीं था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को फर्स्ट रो में सीट नहीं मिला, जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हर चीज होता था। तो यू आर ऑल्सो एक्यूज, आप पे भी आरोप है कि यू डिडंट गिव द ड्यू क्रेडिट वेयर मनमोहन सिंह इज कंसर्न्ड। अम्बेडकर साहब, उसके पहले उनका ये जो मोरल ड्यूटी बनता है कि नरसिंह राव का अंत्य संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, ये भी बताया कि इस कंट्री को। और अंतव्यवस्था का जो अरेंजमेंट रहता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल करते हैं। तो उनको उनका जो भी है वो उसके ऊपर दोष दे सकते हैं, हम उसका इंक्वायरी भी करने को तैयार है। पहले वो जवाब दे कि नरसिंह राव की बॉडी को
कांग्रेस के हेड ऑफिस के अंदर क्यों जाने नहीं दिया? क्या एनिमिटी थी? क्या सोनिया गांधी के जो कृत्य थे, कृष्ण कृत्य थे, जो नरसिंह राव को मालूम थे, इसके लिए वो उनके ऊपर तरसी हुई थी? इसका जवाब दे पहले। और यहाँ पर विनायक अंबेकर साहब, एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं लोगों को। मार्गरेट अल्वा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर ढोने, आपको ये बात पसंद नहीं आएगी शायद, आपने पढ़ी होगी किताब, मुझे मालूम नहीं है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट, वैसे भी आप पढ़ते बहुत हैं, कि 24 अकबर रोड के जो गेट्स हैं, पहली बार 24 अकबर रोड के जो गेट हैं उन पे ताला लगा दिया गया था। नरसिम्हा राव जी की बॉडी बाहर पड़ी थी, गेट के ऊपर ताला लगा दिया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में डॉक्टर ढोने? नहीं, ऐसा है कि देखिए, उस वक्त भी सोनिया गांधी तो पार्टी में यानी अध्यक्ष पद स्वीकारना नहीं चाहती थी, लोग खुद गए। नहीं नहीं, सुनिए, हाँ, बोलिए ना सर। लोगों, कांग्रेस के सब लोग एक साथ जाके बोले कि आप मैडम संभालो। मैं सोनिया गांधी का क्या हुआ, 84 में इंदिरा जी गई और 91 में राजीव गांधी गए। जी। उसके बाद में सोनिया जी तो राजकारण से दूरी हुई थी, जी। तो उन्होंने तो घर में बैठना पसंद किया। लेकिन बाद में ये भी सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, जी बने। तो हाँ, तो ये नरसिंह राव भी अध्यक्ष बने थे। तो देखिए, ये कोई सोनिया गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के सब लोगों ने जाके बोले कि मैडम आप रहेंगी तो सबकी सहमति रहती है आपके नाम पे, तो इसीलिए आपका ही बनना जरूरी है। और जो ग्लैमर है, जो देश के लोग गांधी परिवार को चाहते हैं, तो उसका फायदा पार्टी को मिलेगा, इसीलिए आप आ जाओ, आप पार्टी की कमान संभालो। तो ये हकीकत है कि उनका तो ग्लैमर है। प्रियंका गांधी का बोलो, राहुल गांधी का बोलो, गांधी परिवार के किसी भी नेता का वो तो ग्लैमर रहता है। तो पार्टी के लोगों को भी लगा कि पार्टी बुरी हालत में है, पार्टी का संगठन कमजोर हो गया है, इसीलिए अगर ये गांधी परिवार से कोई आता है तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो पार्टी के नेताओं के कहने पे ही, पार्टी के नेताओं के आग्रह करने के बाद ही सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पे बनी, अध्यक्ष पद पर विराजमान हुई। इसमें उनकी कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद वो चाहे तो प्रधानमंत्री खुद भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने नरसिंह राव को बनाया, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को बनाया, तो वो तो सब तैयार थे। राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जो थे, उन्होंने उनकी किताब में लिखा है कि मैंने उनको दिया था निमंत्रण कि आप आइए, आप बनिए प्रधानमंत्री। उनकी किताब में उनको प्रधानमंत्री बनने में कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन फिर वो नहीं बनी। तो सोनिया गांधी को ना प्रधानमंत्री पद का कोई लालच है, ना उनको कोई अध्यक्ष पद का कोई ये है। और जहां तक नैतिकता की बात है, तो मैंने तो ऐसे कई उदाहरण दिखा सकता हूं। और इसके अलावा मैं बोलता, आप 24 अकबर रोड पे जाइए, कांग्रेस का ऑफिस कैसा है देखिए। जो पार्टी ने 70 साल तक राज किया, वो पार्टी का ऑफिस देखिए कैसे है। मेन जो ऑफिस है ऐसे, वो स्लैब के, बाकी जो आजू बाजू में बने हुए हैं, वो उसके ऊपर छप्पर, ये टीन बोलते हैं उसको, वो टीन है, छप्पर है उसके ऊपर, उसपे स्लैब नहीं है, अंदर से पीओपी किया है और एसी लगाया हुआ है। तो ऐसे ऑफिसर, जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के ऑल इंडिया के, वो बैठते हैं ऐसी जगह पे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आते ही उन्होंने 3-4 साल में 5 स्टार ऑफिस बना दिया दिल्ली में। तो ये तो करप्ट पार्टी है। इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए? आंसर व्हाट अंबेडकर साहब बार बार आपको पूछ रहे हैं कि यू नेवर ट्रीटेड द फ्यूनरल ऑफ नरसिम्हा राव, बहुत आपने पूरा देश ने देखा ठीक नहीं था, कांग्रेस कुड हैव डन बेटर। उसको आप आंसर करना चाहोगे जो अंबेडकर साहब बार बार आपको टोच रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये जो लोग, इनको जो इतना ये है कि भाई नरसिंह राव जो है, नरसिंह राव कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे और उनको बनाने वाली सोनिया गांधी थी, उनके सहमति के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये क्यों भूल जाते हैं आप? और ये जो मामला है कि भाई ये ऐसा हुआ था, कि इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके बोलूंगा कि सही में ऐसा हुआ था, इतना जैसा आप बता रहे हैं। और लेकिन उसके बाद क्या है कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और बाकी सब लोगों ने, दे अटेंडेड हिज फ्यूनरल, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी गए थे, सब लोग गए थे। उसके बाद उनका मेमोरियल भी बना आंध्र प्रदेश में, और तो और छोड़िए राजघाट पे जो शक्ति स्थल है उसके बाद भी बना। सर ऐसी बात नहीं, सर नहीं सर, जो सवाल आपसे पूछा गया है वो उसका आपने जवाब दिया नहीं।
वेरी फ्रैंकली कोई ऐसा ऐसा कभी नहीं। हो नहीं सकता कि कांग्रेस के अंदर कोई हो उसको ये ना मालूम हो कि पीवी नरसिंह राव जी के साथ क्या हुआ। क्या नहीं नहीं, बात कर रहे दूसरी हैं बात सर? ऐसा है, जो आदमी मरने के बाद, मुझे जी। तो जहां तक कांग्रेस का कल्चर मालूम है, जी। कोई आदमी मरने के बाद उसके बारे में कोई बुरी भावना तो कोई रखता नहीं। देखिए गोपीनाथ जी मुंडे, जो उनका निधन हुआ था, तो उसके बाद में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गए थे वो। जब वो गोपीनाथ मुंडे जी के लिए वो इतना प्रेम रख सकते हैं या आदर रख सकते हैं, तो नरसिंह राव जी के लिए क्यों ऐसा किया सर होगा? नरसिम्हा राव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाल कृष्ण अडवाणी जी गए थे, ये आपको बता दूं। ऐसा नहीं है नहीं, नहीं, वो देखिए, उनका नहीं, नहीं, सर देखिए, अंबेडकर लाल साहब का कृष्ण इशारा अडवाणी- आपकी तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। ये आपको नहीं, नहीं, ये देखिए- आपको जवाब देना है इसका। नहीं, लाल कृष्ण अडवाणी हो गए, अटल जी हो गए, जी। ये सुषमा स्वराज हो गई, अब इनकी भारतीय जनता पार्टी रही कहाँ है? देखिए मेरे सर आरएसएस वो तो वालों से बीजेपी भी वाले direct बोलेंगे, संबंध है। सर वो तो बीजेपी वाले नहीं, नहीं, बताएंगे, आप थोड़ी बता सकते हो। नहीं, जैसे नहीं, जैसे सुनिए जैसे ना। बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो पूरे पूरे देशभक्ति से जो प्रेरित थी, वो अब नहीं रही है, अब आप जॉर्ज सोरोस से प्रेरित हैं। सीधी सादी बातें ना नहीं, सर। आपने आपने राहुल गांधी जी आज वियतनाम में है, तो क्या जरूरी था जब पूरे देश मौन कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के, और राष्ट्रीय तरफ से भी झंडा सब हाफ बेस पे चलेगा, तो क्या सिंबॉलिकली ठीक था कि कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन देश छोड़ के वियतनाम चले जाए मनाने के लिए, अगर नहीं मनाने के लिए जो भी है, इस चीज को क्या लोग देख रहे हैं? बीजेपी ने पॉइंट आउट किया, अमित मालवीय ने पॉइंट आउट किया, ट्वीट किया कि राहुल नहीं, गांधी अमित मालवीय बहुत झूठा आदमी है। अमित मालवीय बहुत यानी फोटोशॉप करके डालता है, बहुत बहुत ही तो गलत अभी यानी राहुल इतना गांधी जी झूठ फैलाने तो- वाला, सर आ रहा हूं, झूठ अंबिकर साहब आप फैलाने ही की के पास आ रहा हूं। मशीन है अमित मालवीय। अंबिकर साहब आप ही के पास आ रहा हूं। Now point is, Dr. Surendra Malhotra, I am coming back to you after I go to Vinayak Ambekar साहब, because this is very important. सर आपके मुताबिक अमित मालवीय जी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी वियतनाम में नहीं है इस वक्त, ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। वो किसी चीज को किस तरह से सर वो दिखाते हैं पुरानी ये बात बात होगी बोल ना। रहा आई हूं। एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक केस। ये राहुल नहीं बोल रहा गांधी हूं, जी को वियतनाम अभी में देश होंगे। छोड़ने की क्या जरूरत थी? सर चलिए इनकी विनायक अंबेकर साहब आप कुछ नैतिकता बोलने ऐसी वाले है थे, कि बोलिए ये सर, स्पेसिफिक प्लीज इश्यूज प्लीज में प्लीज बोलेंगे नहीं और बलती बातें करेंगे। अभी आपने जैसा बोला, केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के डेथ के ऊपर 7 दिन का राष्ट्रीय दुखौटा जाहिर किया है। जी। तो आपने बड़ी अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि ऐसे समय में एलओपी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, जाना नहीं चाहिए था उनको। ये नैतिकता उनकी जो है ना, मैंने जैसा बोला ना, झूठी नैतिकता है, जॉर्ज सोरोस की नैतिकता है, उसमें ये बैठता है कि तुम भले कोई रहो कोई ना रहो। जिस आदमी ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बनाया हुआ ऑर्डिनेंस प्रेस के सामने उनके मुंह पे फाड़ा रहा था, उसके मन में मनमोहन सिंह जी नहीं के नहीं, बारे में गलत बात क्या- बोल रहे, क्या- गलत बोल रहे। सब अंबेडकर टीवी पे साहब, आपको 100 प्रूफ दे सकता हूं मैं। नहीं 100 नहीं, proof ये दे जो सकता फाड़ा हूं। वो बराबर है, और सुनिए, जो वो फाड़ा बराबर है, उनके मुंह पे ऐसा फाड़ा ये बोल रहे हैं, ये ऐसा। गलत है। नहीं मुंह पे नहीं, वो वही गलत है। एक ही बात हो गई ना सर। ऑर्डिनेंस जो था, नहीं, नहीं, वो नहीं। फाड़ने के बाद में आप टीवी का जो टेक है वो वापस देखिए। मनमोहन सिंह जी के बेचारे का जो चेहरा था वो बहुत असहाय थे वो, और वो बहुत दयनीय हुआ था। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, मैं 10 बार वो क्लिप देखी है। ये क्या सर, नैतिकता there was की a बात cabinet करेंगे? resolution। कैसे गए वो? तो आप शांति कोई से- गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं करती। हम नहीं फाड़ते विरोध नहीं नहीं है, हम करते। फाड़ते नहीं है। हमारे अरे फाड़ते नहीं प्रधानमंत्री क्या के आप जरा- सामने हमारे कोई भी पार्टी का नेता कोई भी ये ऑर्डिनेंस आपका फाड़ के प्रधानमंत्री, अपनी मस्ती, आपका प्रधानमंत्री तो हुकुमशाह है, उसके हाँ, सामने बराबर तो है। ना आरएसएस आपके प्रमुख की भी नहीं चलिए, चलती। can I ask a specific नहीं question? नहीं नहीं, तो हुकुमशाह है, चलिए, कोई बात हुकुमशाह है। ओके कहाँ ओके ये जी है? विनायक अंबेकर साहब, प्रदेश की आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर ढोने वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। डॉक्टर ढोने, डॉक्टर मनमोहन सिंह का फ्यूनरल जो था वो एक दिन वेट करना पड़ा सब लोगों को, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां बाहर हैं। सर आपको मालूम है उनकी एक बेटी कहाँ काम करती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की? आपको मालूम है सर? डॉक्टर ढोने जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में काम करती है सर। करेक्ट सर ये क्या और है सर? भारत के विरोधी जितने भी काम है सर डॉक्टर उसमें मनमोहन वो सिंह राहुल की गांधी बेटी की जॉर्ज मदद सोरोस करती है। फाउंडेशन में काम करती है, मतलब ये नहीं, this वो is- ठीक come है, on, लेकिन वो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ होगा कि वो लड़की ने ऐसा किया तो ठीक है।
आप proof बोले Sir, है। it is there. It is there नहीं everywhere. नहीं, She's employed there. जॉर्ज सोरेस का नहीं, उनकी लड़की ने कोई ऐसा अरे काम किया फाउंडेशन होगा। में एम्प्लॉयड है, पगार लेती है जॉर्ज सोरोस का। नहीं ठीक है ना, वो जॉर्ज सोरोस का पगार लेती होंगी, लेकिन उसने कोई देश विरोधी काम में उसका कोई हाथ होगा तो वो बताइए, तो उसको जी। जेल में डालना चाहिए। आपकी That- सरकार है, that, by the way, is a सरकार major आपकी है, point. आप जेल में डाल दीजिए। दुरुस्त बात। देखो ये दुरुस्त बात है डॉक्टर ढोने, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वास्तविकता में जॉर्ज सोरोस कोई भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, तो जॉर्ज सोरोस के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उसके साथ संबंधित हैं, उन सबको जेल में होना चाहिए। सीधी हाँ, सादी बात, बिल्कुल। वो होना चाहिए, ये मानते हैं। Doctor- डॉक्टर मल्होत्रा, जी। डॉक्टर मल्होत्रा, नाउ हाउ डू यू सी उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से कहा लास्ट ईयर शुड बी ट्रीटेड एज ईयर ऑफ मैसेकर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का हत्या जिस प्रकार से लास्ट ईयर हुआ वो कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अलग अलग जंग चले, जहां मराठा एजिटेशन चला, मराठा एजिटेशन को क्वेल्च करने के लिए, थकाने के लिए अलग अलग जातियों को सरकार ने प्रोवोक कर दिया। प्रोवोक करते करते, जैसे धोनी साहब ने कहा, आज वही लक्ष्मण आके मुंडे जी के मंच पर दिखे। तो डू यू थिंक, यू एग्री, क्या मैसेकर ऑफ डेमोक्रेसी था लास्ट ईयर? मैसेकर ऑफ डेमोक्रेसी। We all started with the Maratha agitation, Bilkul. and which was that so many false promises and endeavors to so many false promises were given, and we all saw that those promises were absolutely they vanished in the thin air, and the talks which were done, they were never going to be fulfilled, but yet the time निकालने की बातें जैसे होती है वो सब हो गया। फिर then Chhagan Bhujbal ji started off with OBC, then Dhangar, so many different issues started, and there was nothing was done to pacify the whole matter. It was all the time it was like prolonged and prolonged. And what happened during the election time also, the katega to batega, batega to katega, all these things, and the divisive politics was so much. There is the Hindu, Muslim, and so much of divisive politics we saw. The democratic fabric of India was at stake throughout the year. It was all the time, and the basic issues, the proper issues, like whatever about the बेरोजगारी, the महिलाओं की सुरक्षा, the बच्चों की सुरक्षा, ये जो important issues है, they were all sidetracked. There was a utter failure of the Gruha Mantralaya. The Maharashtra was it still is. Now there are some actions which have just started. Now I hope everything becomes okay and Maharashtra, gets its vaibhav again back. Otherwise, every time we have to ask this question, ki kuthe neun thevla Maharashtra amcha. Every time it is the same condition. So we have seen all this divisive politics which went on. Definitely it was. We firmly agree with it. And and what is Nitish Rane also he's doing now? Now also he's doing the same thing. So all this goes on. तो अंबेडकर जी कुठे महाराष्ट्र को कहां लेके आए? आप सुना डॉक्टर मल्होत्रा ने किस प्रकार से आरोप लगाए आप पे? महाराष्ट्र को बहुत अच्छी जगह पे लेके गए हैं। इसके लिए जनता ने हमारे को थम्पिंग मेजॉरिटी दी है। जो पार्टी की मैडम जी रिप्रेजेंटेटिव है, उस पार्टी के जो मुखिया है, उनको महाराष्ट्र के डिविजिव पॉलिटिक्स का गुरु बोला जाता है। और मराठा आंदोलन की मैडम जी ने बात की, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोलते बोलते बोला, हमने जो मराठा आंदोलन शुरू किया था, तो अच्छा हो गया उनके प्रवक्ता ने इधर आके हमारे चैनल पे उन्होंने ये किया, एक्सेप्ट किया कि मराठा आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला सपोर्ट किया था, बोले ऐसे बोला ही नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से सुनता हूँ मैं, और जो बोला कि हमने जो मराठा आंदोलन शुरू किया था, ऐसा बोला उन्होंने। अच्छा है, इन्होंने शुरू किया था मराठा आंदोलन। अच्छा क्या साहब, अंबेडकर साहब अगर जो भी कर सकती थी वो हमारे सरकार ने किया है, और वो पूरे सुप्रीम कोर्ट तक उसको बचाने का काम हमारे सरकार का है, वो जरूर करेंगे। इनके थ्रू जो मनोज जी जरांगे ने जो अनप्रैक्टिकल मांगे रखी थी, वो मांगे नहीं होगी, ये स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले दिन से बताया हुआ। स्पेसिफिक क्वेश्चन सर, धोनी साहब आपके पास आ रहा हूँ, उसी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। अंबेडकर साहब,
A revision petition had to be filed in the Supreme Court. I think the interim revision petition has already been filed. उस केस के बारे में कोई नॉलेज है सर? कुछ इन्फॉर्मेशन आई आगे क्या होने वाला? क्योंकि इट वाज रिजेक्टेड ड्यूरिंग उद्धव ठाकरे जी टाइम। जो रिजर्वेशन मिली थी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जो दी गई थी, और उसमें यह था कि एनेक्सचर में आई थिंक एनेक्सचर नंबर 23 और 13 नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मराठी इनटू इंग्लिश, एंड दैट ट्रांसलेशन वाज नॉट अवेलेबल. Just on that specific point, it was dismissed. So, has the revision petition been filed, sir? Ambedkar sir? That revision petition is pending, but the tragedy of the thing is जो मराठा रिजर्वेशन 10% में SCBC का सर्वे करके पूरा लीगल कंप्लायंस करके हमारे सरकार ने जो दिया है, वो जो रिजर्वेशन है वो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, और उसके अगेंस्ट भी कोई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं. जी. तो इसका शायद हो सकता है दोनों केस क्लब करके इसका डिसीजन होगा. पूरे मुझे उसका उतना नॉलेज अभी नहीं है आज. राइट, ओके. ढोरे साहब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर प्लीज. ये ऐसा है कि अभी आंबेडकर साहब ने जो बोला कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, तो क्या है, ये जाने वाले लोग कौन है? ये सेव मेरिट सेव नेशन वाले लोग हैं. ये सेव मेरिट सेव नेशन, ये लोग कौन है? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, आरएसएस से संबंधित लोग हैं. वो पार्टी में काम नहीं करते हैं भाजपा में, लेकिन वो आरएसएस से संबंधित है. कुछ लोग उसके मेंबर भी है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ लोग आरएसएस में सक्रिय भी है. वो तो उसका एक अलग विषय होता है, उनके सब नाम वगैरह भी है. ये लोग नहीं चाहते आरएसएस बेसिकली और भारतीय जनता पार्टी, ये एक्चुअल में ये एंटी मराठा पार्टी है. ये एंटी मराठा है. हाँ, ये एंटी मराठा ही है. ये इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता. इनको शिवाजी महाराज से लेके शाहू महाराज से लेके इनको कोई मराठा इनको पसंद ही आता नहीं. कोई बड़ा शरद पवार जी ने बोला था कि उनको कोई भी बड़ा नाम शिवाजी छत्रपति महाराज की अच्छी तारीफ मत करो, उनको जानता राजा कहने की जरूरत नहीं है. ये शरद पवार जी ने बोला था. जिनको नहीं ऐसा कुछ नहीं. क्या मानते हैं साहब आप? शिवाजी महाराज का जितना अपमान आरएसएस के लोगों ने किया, उतना मुसलमानों ने भी नहीं किया. मुसलमानों ने भी शिवाजी महाराज का कभी चरित्रानंद नहीं किया. शाखा में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो लगा के उनकी आराधना की जाती है. 1925 से 100 साल हो गए. तुम्हारे शरद पवार उसके बाद में पॉलिटिक्स में आए, तो क्यों वो जेम्स लेन ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानंद किया, हमारा कोई आरएसएस के आपकी भांडारकर इंस्टीट्यूट में उसको पैसा देके उनको बुलाया था. ये शरद पवार नहीं, उसका किताब है. सुनिए, नहीं, शरद पवार साहब का कोई रोल नहीं. अम्बेडकर साहब जरा 2 मिनट रुकिए. ये जो मनोज जरांगे है वो उस टीम में शामिल थे. मनोज जरांगे ये शरद पवार जी के आदमी है. पहले दिन रात को 3 बजे पहले कोई मिलने को गया तो शरद पवार जी तो उसके बाद अगर जरांगे उनकी भाषा बदल गई. नहीं, ठीक है. आप अब नहीं सुनिए, ऐसा है कि अगर मनोज जरांगे शरद पवार के आदमी है, आप बोलते हैं तो एक मान लेते हैं कि होंगे उनके आदमी. मैं ये नहीं बोलता होंगे है, लेकिन आप बोलते हैं तो मान लेता हूँ. लेकिन उनका जो मुद्दा है वो कोई गलत तो नहीं है. मराठा समाज को आरक्षण देना, हमारे पार्टी ने दिया है 10% आरक्षण. तो ये जब आप बोल रहे हैं ना कि वो शरद, हमारे आप ये बोल रहे हैं आरक्षण दिया है. जब शरद पवार जी का गवर्नमेंट था तो 15 साल में वो आरक्षण नहीं दे सके. जो नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, 2.5 साल में उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके. हमारे पार्टी ने आने के बाद में 2.5 साल में उनको 10% का आरक्षण दिया है. ये आपके ही लोग थे. ये आपके ही लोग थे कोर्ट में जाके रद्द करने वाले भैया. सर तो अम्बेडकर साहब, सुप्रीम कोर्ट भी आपके हक में. जरांगे भी आपके ही लोग हैं. जरांगे भी हमारा आदमी है. जरांगे हमारा आदमी है ना. जरांगे आदमी है. हो सकता है तो आपका भी कोई आदमी हो सकता है. इसलिए वो नहीं, तो आप ये बोल रहे हैं ना मुख्यमंत्री सर आप वो फडणवीस जी का नाम ले रहा था. और वो जो 2 धर्म में, जो 2 जाति में जो झगड़ा हुए ऐसी बातें कर रहे थे. वो
और फडणवीस को पर्सनली गाली दे रहे थे, जो शरद पवार जी ने बोला था। ये महाराष्ट्र के ये सामने क्या आपके है। पास प्रूफ है महाराष्ट्र क्या? के जी, आपके पास प्रूफ है क्या? आप ऐसे ही कुछ आपके भी पास सुना है, प्रूफ सुना है है क्या कि तो नहीं, डॉक्टर आपके मल्होत्रा पास हमारे आपके पास आदमी प्रूफ थे है नहीं क्या? नहीं नहीं जो नहीं, वो जो बोल रहे थे बात करते हैं जरांगे साहब उसी सुनिए। टाइप से मैं आदमी नहीं नहीं करता नहीं हूँ। नहीं आपके नहीं पास नहीं प्रूफ है मैडम क्या? कुछ भी बोल मैडम मैडम वो मैडम वो आंबेडकर साहब जो बोल रहे हैं वो बराबर है कि वो बोल रहे थे फडणवीस साहब के साथ हुआ था, खिलाफ। इसका प्रूफ था क्या शरद पवार जी के मैडम पास? मैडम उन्होंने बोला साहब ना साहब 13वां आंबेडकर साहब बॉम्ब स्फोट हुआ करके। आंबेडकर साहब आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि वो मनोज जरांगे देवेंद्र फडणवीस जी को बोल रहे थे, शिंदे को नहीं बोल रहे थे। और वो शिंदे मराठा है, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई शिंदे मराठा है, वो मराठों के खिलाफ में नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ये आरएसएस के है और भाजपा के है, तो ये मराठों के खिलाफ में जा सकते हैं, इसीलिए उनको टारगेट कर रहे थे। ये आपकी बात जो है हकीकत है, लेकिन वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपके ही जो लोग थे, इसके पहले उनके नाम भी हम बता सकते हैं कि वो आरक्षण के, और वो जो महाराष्ट्र के महाधिवक्ता है उन्होंने भी बोले थे कि मुख्य देवेंद्र फडणवीस जी ने हमको बोला था कि इस मामले में मत बोलिए। ये हकीकत है। आप राइट, लेट्स गेट डॉक्टर मल्होत्रा फडणवीस ने- जी जी जी, आप- दिस इज टॉकिंग इन द आप लोगों पे- सर, ये तो हवाई बात हो गई ना। में बहुत अच्छी तरह से ये आरक्षण का मामला चलाया था जी। और महाराष्ट्र के मराठा समाज ये जानते हैं, मानते हैं, इसलिए हमारे पार्टी को महाराष्ट्र के तमाम मराठा प्यार करते हैं। हमारे पार्टी में बहुत मेजॉरिटी में मराठा है जी। और वो पार्टी के साथ एकजुट है, उनके मन में कोई भी ऐसी शंका नहीं है। राइट, डॉक्टर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है मैम कि अभी ये मराठा आरक्षण का जो मसला है, उसके अलावा दांगड़ आरक्षण का जो मसला है, और उसके अलावा छगन भुजबल साहब की जो समता परिषद है, वो क्या ये अब थम गया है? इज इट ऑल राइट नाउ, और डू यू थिंक इट विल रेज इट्स हेड अगेन मैम? Yeah, it will definitely raise its head again. It is just some time, which is like there are other matters which have come up, but definitely it will raise again. मनोज जरांगे उन्होंने बोला ही है कि वो वापस ये चालू करने वाले हैं, जैसा उन्होंने बोला था। तो आई सपोज जब तक उनको आरक्षण की कुछ इट इज नॉट सॉल्व्ड इन सम वे, तो इट विल गो ऑन डेफिनेटली। डॉक्टर मल्होत्रा, जिस प्रकार से आज यूनियन कैबिनेट बैठा एंड दे टुक डिसीजंस इन फार्मर्स के हित में, बहुत सारे अच्छे डिसीजंस निकाले। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो जितने भी है, नल से जल, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत, आयुष्मान, उज्ज्वला, आवास योजना, 80 करोड़, तो क्या ये गरीबी हटाओ वाज अ फेलियर ऑफ द कांग्रेस? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ सबसे बड़ा जुमला था कांग्रेस का। मैं धोनी साहब से पूछूंगा, डू यू बिलीव व्हेन ही सेज दैट कि आज मुझे ये सब करना पड़ रहा है? आवास योजना 5 करोड़, 12 करोड़ घर से, हर घर नल से जल, 12 करोड़ शौचालय, ये आपको करना चाहिए था कांग्रेस को पहले। ऐसा अभी ये जो इतने सारे निकल रहे हैं, तो गरीबी हटाओ मदन, इतने सारा जो बाटअप हो रहा है, इतने सारे गरीबी के रेशा के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है अभी भी? तो ये सब, एंड कांग्रेस के टाइम पे जो नरेगा वगैरह कितने सारे अच्छे बेरोजगार योजनाएं वगैरह, काफी सारी अच्छी योजनाएं थी। We have 153 crore people, ma'am. What do you do? What do you do? डोने साहब, one final हाँ। question to you. जो बार बार आपके ऊपर आरोप लगता है कि 63 साल के करीब कांग्रेस पावर में थी, 55 के 60 साल के करीब। सर 60 साल से आप लोग पावर में थे। 1947 से लेकर के आज तक तकरीबन 77 साल हो गए, 77 ईयर्स, इस 78 ईयर लग गया है। आज भी हम वही बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, क्या है वो बेरोजगारी, नल से जल, ये सब बातें कर रहे हैं। घर के ऊपर छत नहीं है। सर अंबेडकर साहब ने एग्जांपल दिया, चाइना का एग्जांपल दिया। चलिए, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी मूव्स एट इट्स ओन पेस। आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक परहैप्स द कांग्रेस कुड हैव डन बेटर? आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहिए था? आखिरकार सर पूरी बात सुनिए, 1991 में कांग्रेस की सरकार थी। वही कांग्रेस ने जो निर्णय 1991 में लिए, वही निर्णय आप 1972 में ले सकते थे, 1971 में ले सकते थे। व्हाई कुडंट यू डू दैट? सर बताएं। नहीं, ऐसा है, जब देश को आजादी मिली तो देश अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ था, राजे महाराजे थे, उनका राज चल रहा था। 47 से देश नहीं, सुनिए, 47 में पूरा हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक देश बना, और उसके बाद में सरकार ने जो काम किया, अब देश में कुछ नहीं था
क्या था पहले, शुरुआत से करना पड़ा सब, तो जीरो से लेके शुरू हुआ। और देखिए अमेरिका ने तो कंप्यूटर बनाया था, भारत ने राजीव गांधी के वक्त में सुपर कंप्यूटर बनाया था। महाराष्ट्र के इनके पुणे के ही डॉक्टर विजय भटकर जो हमारे अकोला जिले के हैं, उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था। ये तो कांग्रेस के वक्त हुआ और बहुत सारे ये हुआ। अभी देखिए आज जो है, आप बोल रहे देश की तरक्की आज हुई, तो डॉलर जो रुपए के डॉलर के मुकाबले में रुपया तो गिर ही रहा है। जी तो ये कहाँ तरक्की, जीडीपी क्या, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, तो ये क्या देश की तरक्की है? सर, तरक्की हुई है देश एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। डॉलर का गिरना एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। वी लर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज नो नहीं, डाउट डॉलर अबाउट नहीं इट। गिर रहा, रुपया गिर रहा, डॉलर नहीं गिर रहा, रुपया गिर रहा। सर, रुपया गिर रहा है, मैं वही बोल रहा हूं। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपया गिरता है, एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। आवर राहुल एक्सपोर्टर्स गांधी हैव अ लॉट ऑफ स्कूल ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स। Sir, that's ये it. But राहुल all I'm गांधी saying School is, of Economics है। Vinayak Ambedkar नहीं, साहब, नहीं, final export point to का- you. Final point to you, Vinayak Ambedkar साहब. My point is, it is absolutely true that India was a basket case. When we got independence, we were not producing anything. At that time, the Mahalo Nobis plan was the only thing that was capable of saving India. In fact, if you remember, Winston Churchill, he had predicted that India will break up into 4-5 different parts when we got independence. But all of us, and I will credit Pandit Nehru certainly, and all the other stalwarts who were with him, and all the people of India, we said we will show you. हम दुनिया को दिखाएंगे। वही जज्बा आज भी हमारे पास है। मेरा ये कहना है सर कि ठीक है, आज की तारीख में आपके पास एक एक चीज है, उस वक्त कुछ नहीं था। You have got a huge industrial base, you've got computers, India is a huge in information technology superpower, we are the best in the world, our brains are the best in the world. आप मुझे बताइए सर कि ये कब तक खत्म होगा? जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये कब खत्म होगा सर? अंबेडकर साहब। ऐसा है कि पूरे इकोनॉमिक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ऐसा उसका एक वाक्य में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। I agree with आप you. एक बात नहीं, आप ध्यान में रखिए कि 2014 में इंडिया पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज एट 11th प्लेस। Yes. हमने 2024 तक उसको 5th प्लेस पे लाया है और हमारा कॉन्फिडेंस है कि 2027 तक हम उसको 3rd प्लेस में या 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाएंगे। इसके लिए जो काम करना था वो करके दिखाया है। अभी इसका दूसरा अर्थ ये लोग ऐसा निकाल रहे हैं कि 81.7 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो ये बोलते हैं उनको भिखारी बना दिया है। ऐसा मतलब नहीं लेना रहता है। आप जब भी किसी आपके रिलेटिव के घर जाते हो और एक मिठाई का बॉक्स लेके जाते हो, तो क्या आप उसको भिखारी समझ के लेके जाते हो क्या? जब इंडिया का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमने किया है तो उसका कोई शेयर हमारे भारत के सबसे जो निचले स्तर के आदमी है, जिसको हम दीनदयाल जी का अंत्योदय बोलते हैं, वो अंत्योदय के तहत उसको पहले सर्विस देना चाहिए। तो हम उसको फूड दे रहे, उसको घर दे रहे, उसको मेडिकल बेनिफिट दे रहे, उसको घर से हर घर नल से जल दे रहे, उसको टॉयलेट दे रहे, ये उसकी सेवा कर रहे। ये हमारा ड्यूटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है जी। कि हमारा वेलफेयर स्टेट है और हमको ये करना चाहिए। अभी वो लोग गरीब क्यों है, तो आपने ये भी देखना चाहिए कि पहले के 60 साल में और अभी के 10 साल में ये जो पॉपुलेशन है वो कितने ग्रोथ है, कितना जी, ग्रोथ है। correct. ये ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है और ये जब स्टेबलाइज हो गया तब ये जो आपका प्रॉब्लम है, आपका जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हमारे सामने अपने आप आएगा। और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो बर्थ रेट है वो अभी स्टेबलाइज हो रहा है। So one last thing. Now, I want to ask हाँ, Ambedkar साहब, बोलिए। you know, the ST बस बहुत हार्टनिंग था जब फडणवीस साहब कह रहे कि पहले बार गढ़चिरौली में ST बस चलेगा। They are also happy to hear about that. कोई सोच रहे इसके बारे में। Now, how do you see that particular statement, विनायक जी? ये बहुत ग्रेट स्टेटमेंट है कि जिधर जरूरत है, हमारे दीनदयाल जी ने बताया था कि कोई भी कतार में जो लास्ट आदमी बैठा है उससे तुम डेवलपमेंट का शुरुआत करो। तो गढ़चिरौली ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये गए 70 साल में महाराष्ट्र के प्रगति में लास्ट स्थान पर है। इसलिए देवेंद्र जी ने अभी उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, उसको समझते हुए उधर से डेवलपमेंट की शुरुआत करने की बात कही है। और उनके प्रीवियस 5 साल में भी उन्होंने गढ़चिरौली में बहुत प्रयास किए थे। डॉक्टर ढोने, आप कुछ बोलना चाह रहे थे?
नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है कि गढ़चिरौली में पहले बस ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं हो सकता बोल रहे थे कि बस नहीं थी, पहली बार ही हुआ, ऐसा तो नहीं है। सर स्टेट ऐसा ट्रांसपोर्ट बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टेट हाँ? ट्रांसपोर्ट फॉर द नेबरिंग स्टेट्स, आसपास जो है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आगे जाकर के ओडिशा हो गया, वहां पे बस नहीं जाती थी। आपको वापस आना पड़ता था, या तो आप मध्य प्रदेश की तरफ से जाते थे, या आपको इस तरफ नागपुर आना पड़ता था, फिर वहां से जाया करते थे। वेरी फ्रैंकली, बिकॉज़ आई बीन देयर। अब मैं गढ़चिरौली में बहुत टाइम बिताया सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बट बाय द वे, बिफोर वी गो, one good piece of news for everybody, apart from the two very heartening things that came up today. One, of course, is Tawahur Rana being extradited over here. Number two, surrender of Naxalites, and Mr. Devendra Fadnavis's commitment that he will develop Gadchiroli. Number two, and number three, Dr. Dhone, Dr. Surena Malhotra, and Ambedkar Sahib. This is the latest World Bank and IMF report released yesterday. India is expected to become the world's fourth largest economy, overtaking Japan by August 2025. By August this year, we will be the fourth largest economy. I hope this GDP also translates into per capita income. That जो गरीब से गरीब आदमी है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जीडीपी है वो उसके पास भी जाए. I hope so. Thank you so much, and a very, very happy new year to all three of you. Dr. Surena Malhotra, thank you very much, ma'am. And happy new year to you. Dr. Dhone, always a pleasure having you. Dr. Malhotra, also always a pleasure having you on. And Vinayak Ambedkar Sahab's incisive analysis is a pleasure, always. Happy new year to all three of you. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. Right? There was a very civilized discussion. don't you Very think? nice. Very, very nice. Nobody yelled at each other, No, no. which is rather nice. Of course, a lot of people might miss the entertainment because a lot of people said कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपका शो देखने में इसलिए मजा आता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और आप उनको रोकते नहीं हैं. But today, nobody did. I think they were all very, very civilized, or perhaps they partied very hard into the night yesterday, so they were perhaps all tired. Well, that's just about it. इन टुनाइट शो, आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रदीप जी, would you like to say something to our viewers? Fantastic. I mean, as you say, one of the heartening discussions was what you reported right now, that the World Bank says that we're going to be the fourth biggest economy, and that's a great This year. start. This year. 2025. This year, sir. 2025 के पहले दिन में ये सुनना कि आप fourth biggest economy and overtaking Japan, it's fantastic news. It's a booster actually. Fantastic, absolutely fantastic. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और सब्सक्राइब जरूर करें साहब चैनल को. सब्सक्राइब जरूर करिए, वो घंटी भी बज गई है, जरा बेल आइकन क्लिक भी करें और कमेंट जरूर भेजें. इंडिया to be the fourth largest economy in the world by August this year. We will overtake Japan. And the decisiveness of leadership, where you're getting Tahabur Rahana back from US, who's not a citizen of this country, No. but you are getting him as extradition. That's a right. great gift for the nation. And now for David Headley. But one never knows. There's many a slip As between long as you try. There's many a slip between the cup and the lip. We don't know. Bilkul. Tawar Rana might actually get a stay from somewhere. One never knows. In any event, but since a US district court has already said that he can be extradited, it will only be an intervention from the President of the United States that will stop him. So I hope that doesn't happen. And if that happens, then a basic question will arise. Is America standing by terrorists? क्या अमेरिका आतंकवादियों के साथ खड़ा है? What is so important about Tawahur Rana and David Headley, जो अमेरिका भारत के सामने उजागर नहीं करना चाहता? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा. क्या ये लोग कहीं ना कहीं किसी अमेरिकी एजेंसी के साथ इन्वॉल्व थे? क्या उनका संबंध था? अगर मान लीजिए एक बार फिर हस्तक्षेप होता है किसी अमेरिकी एजेंसी का कि तवाहुर राना को भारत ना भेजा जाए, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा. एंड अमेरिका विल हैव टू आंसर. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.